چکے ہیں بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے نیبرہڈ کونسل اور حلقہ بندیوں کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ حلقہ بندیاں 22 مارچ 2022 تک مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حلقہ بندی کمیٹی 11 جنوری سے 9 فروری تک ابتدائی فہرست مکمل کرے گی۔ 10 فروری 2022 کو نیبرہڈ اور ولیج کونسلز کی حلقہ بندیاں شائع ہوں گی۔ 11 سے 25 فروری تک اعتراضات جمع ہوں گے۔ حلقہ بندی کمیٹی 13 سے 19 مارچ تک حتمی فہرست تیار کرے گی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق بڑا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے نیبرہڈ کونسل اور حلقہ بندیوں کا شیڈول جاری کر دیا۔ حلقہ بندیاں 22 مارچ 2022 تک مکمل کرنے کا حکم۔ حلقہ بندی کمیٹی 11 جنوری سے 9 فروری تک ابتدائی فہرست مکمل کرے گی۔ 10 فروری 2022 کو نیبرہڈ اور ولیج کونسلز کی حلقہ بندیاں شائع ہوں گی۔ اسی طرح 11 سے 25 فروری تک اعتراضات جمع ہوں گے۔ حلقہ بندی کمیٹی 13 سے 19 مارچ تک حتمی فہرست جاری کرے گی۔ لوکل گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ خبردار ہوشیار، والدین کو گھر سے نکالنا قابل سزا جرم قرار۔ ناخلف اولاد کو 1 سال قید اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ ہائی کورٹ نے تحفظ والدین آرڈیننس 2021 کے قانون کی تشریح کر دی۔ والدین کے نکالنے پر اولاد 7 دن میں گھر خالی کرنے کی پابند ہوگی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے شہری کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ والدین کو گھر سے نکالنا قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ ناخلف اولاد کو 1 سال قید اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ ہائی کورٹ نے تحفظ والدین آرڈیننس 2021 کے قانون کی تشریح کر دی ہے۔ اسکولوں اور کالجز میں ناظرہ قرآن کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ اول جماعت سے 5 جماعت تک قرآن پاک پڑھایا جائے گا۔ 6 سے 12ویں جماعت تک ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھانا لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ عدالتی حکم کے بعد پنجاب کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ تعلیمی اداروں میں 70,000 عربی ٹیچرز بھرتی ہوں گے۔ اسکولوں اور کالجز میں نازلہ قرآن کی تعلیم لازمی۔ اول جماعت سے 5 جماعت تک قرآن پاک پڑھایا جائے گا۔ 6 سے 12ویں جماعت تک ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھانا لازم قرار دے دیا گیا۔ عدالتی حکم کے بعد پنجاب کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے۔ تعلیمی اداروں میں 70,000 عربی ٹیچرز بھی بھرتی ہوں گے۔ اسکول ایجوکیشن نے ٹیچرز بھرتی کرنے پر ورکنگ شروع کر دی ہے۔ ایک اور اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ہونہار مستحق طلبہ کے لیے اعلیٰ تعلیم کا حصول آسان ہو گیا ہے۔ ہر ایجوکیشن کمیشن کا احسن اقدام 50,000 طلبہ کو احساس اسکالرشپ سے نوازا جائے گا۔ درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 دسمبر مقرر کی گئی ہے۔ ہونہار مستحق طلبہ کے لیے اعلیٰ تعلیم کا حصول آسان ہو گیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا احسن اقدام 50,000 طلبہ کو احساس اسکالرشپ سے نوازا جائے گا۔ درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 دسمبر مقرر کر دی گئی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں مہنگائی کی۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مسلسل گراوٹ کا تسلسل جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 178 روپے 17 پیسے کا ہو گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر مزید 1 روپے 30 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 178 روپے 17 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر مزید 1 روپے 30 پیسے مہنگا ہوا ہے۔ ڈالر کی اونچی پرواز، روپیہ مزید کمزور ہو گیا۔ طلب بڑھنے پر انٹر بینک میں 1 امریکی ڈالر 4 پیسے مہنگا ہو کر نئی بلند ترین سطح 178 روپے 17 پیسے پر بند ہوا۔ 7 ماہ 20 روز میں انٹر بینک میں ڈالر 25 روپے 89 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر نقدی ملنے کے بعد بھی پے پر دباؤ ہے۔ انٹر بینک کے بعد اوپن ایکسچینج میں بھی ڈالر مہنگا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 30 پیسے مہنگا ہو کر 181 روپے 20 پیسے پر پہنچ گیا۔ یورو 50 پیسے مہنگا ہو کر 202 روپے 50 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 1 روپے مہنگا ہو کر 239 روپے کا ہو گیا۔ سیاسی منظرنامے کا ذکر کر لیتے ہیں۔ تونسر شریف میں جماعت اسلامی کا پاور شو، کلمہ چوک سے ملحقہ گراؤنڈ میں خواتین اور حضرات کی کثیر تعداد میں شرکت۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔
जमात इस्लामी ने तौनसा में अवामी ताकत का मुजाहरा किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं हुक्मरानों ने 3 सालों में मुल्क को मसाइलिस्तान बना दिया। बिजली और गैस महंगी, घर घर गुर्बत और बेरोजगारी नाच रही है। 3 सालों में कोई कारखाना लगा, ना ही यूनिवर्सिटी बनाई गई। अवाम को सूबे के नाम पर धोखा दिया गया। रोज कम होती है, कौन फैसले करता है? अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, IMF फैसला करता है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, डीजल की कीमत में इजाफा, चावल, गंदम, आलू, टमाटर की कीमत में इजाफा जुल्म की इंतहा है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि अमलन मुल्क पर IMF की हुकूमत है। महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। जनूबी पंजाब में आज के दिन भी ट्यूबवेल को जो 5 रुपया फी यूनिट बिजली दी जा रही है, आज बढ़ाकर 14 रुपया फी यूनिट कर दिया गया है। सिराजुल हक का कहना था कि जनूबी पंजाब के अवाम भीख नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। नौजवानों को रोजगार की फराहमी यकीनी बनाई जाए। तौनसा को जिला और वाहू को तहसील का दर्जा दिया जाए, जबकि इंडस हाईवे रोड को भी 2 रैया बनाया जाए। तौनसा के अवाम के लिए जीना है और तौनसा के अवाम के लिए मरना है। अगर इस वजीर आला ने तौनसा को जिला नहीं बनाया तो मिन्नत नहीं करना, खैरात नहीं मांगना, ये आपका हक है। सिराजुल हक का मजीद कहना था कि तीनों बड़ी जमातों ने मुल्क लूटा। शहरी जनूबी पंजाब की पसमानदगी दूर करने के लिए जमात इस्लामी की हमायत करें। सेहत के मैदान से खबर शामिल करते हैं। साल 2021 महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए कड़ा साबित हुआ है। कोरोना वायरस के साथ साथ डेंगू ने भी पंजे गाड़े। जाली वैक्सीनेशन करवाने वालों के खिलाफ हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें इन एक्शन रहीं। साल 2021 महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के लिए कड़ा साबित हुआ। कोविड वायरस के साथ साथ डेंगू ने भी पंजे गाड़े। फिर साथ में कोविड वैक्सीनेशन करने वालों के खिलाफ हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें इन एक्शन दिखाई दी। क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट। मोजी अमराज के मरीजों को मिलेगा बड़ा रिलीफ। महंगी अद्वियात की मुफ्त दस्तयाबी से रिलीफ मिलेगा। टीबी, हेपेटाइटिस और एड्स के मरीजों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी। अद्वियात की खरीदारी के लिए महकमा सेहत पंजाब को 32 करोड़ रुपए मिलेंगे। मोजी अमराज के मरीजों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। महंगी अद्वियात की मुफ्त दस्तयाबी से रिलीफ मिलेगा। टीबी, हेपेटाइटिस, एड्स के मरीजों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर दिया गया है। अद्वियात की खरीदारी के लिए महकमा सेहत को 32 करोड़ मिलेंगे। जनूबी पंजाब में धुंध अंधाधुंध, कई रास्ते हो गए गुम। मोटरवे M4 शेर शाह इंटरचेंज से अब्दुल हकीम और मोटरवे M5 शेर शाह से जलालपुर पीरवाला तक बंद कर दी गई है। मुल्तान शहर और गिरदुनवा में धुंध का राज है। धुंध के बायस अंदरूनी शहर में हद निगाह 80 मीटर तक रह गई है, जबकि एयरपोर्ट पर हद निगाह 50 मीटर रिकॉर्ड की गई है। शहर में दर्जा हरारत इस वक्त 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मोटरवे बंद कर दी गई है। धुंध अंधाधुंध। मोटरवे M4 शेरशाह इंटरचेंज से अब्दुल हकीम और मोटरवे M5 शेरशाह से जलालपुर पीरवाला तक बंद कर दी गई है। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में धुंध का राज है। धुंध के बायस अंदरूनी शहर में हद निगाह 80 मीटर तक रह गई है, जबकि एयरपोर्ट पर हद निगाह 50 मीटर तक रह गई है। शहर में दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आपको मौसम की सूरत हाल बता रहे हैं। जनूबी पंजाब में धुंध अंधाधुंध है, कई रास्ते गुम हो गए हैं। मोटरवे M4 शेरशाह इंटरचेंज से अब्दुल हकीम और मोटरवे M5 शेरशाह से जलालपुर पीरवाला तक बंद कर दी गई है। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में धुंध का राज है। धुंध के बायस अंदरूनी शहर में हद निगाह 80 मीटर तक रह गई है, जबकि एयरपोर्ट पर हद निगाह 50 मीटर तक रह गई है। शहर में दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। धुंध ने साउथ पंजाब को जकड़ लिया है। ऐसे में मोटरवे बंद कर दी गई है। 130 पर कॉल करने का कहा गया है मोटरवे हुकाम की जानिब से। मुल्तान में इस वक्त जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं और हद निगाह जो है इस वक्त 80 मीटर रिकॉर्ड की गई है। इब्राहिम खान हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम खान, बताइएगा मुख्तलिफ जो इंटरचेंजेस हैं बंद कर दिए गए हैं, आप कहां पर मौजूद हैं, क्या बताते हैं महकमा मौसमियात वाले? बिल्कुल, मुल्तान में इस वक्त धुंध के हवाले से बात करें तो वाकई धुंध जो है वो अंधाधुंध है। और इस वक्त शहर के हवाले से बात करें तो शहर के अंदर
हद निगाह 80 मीटर तक जो है वो पहुंच गई है, जबकि हम एयरपोर्ट के हवाले से और मोटरवे के हवाले से बात करें तो उधर हद निगाह 50 मीटर है। मोटरवे के हवाले से हम बात करें तो मोटरवे M5 जो शेर शाह से जलालपुर पीर वाला तक है उसको बंद कर दिया गया है। मजीद हम मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से शेर शाह तक ट्रैफिक के लिए भी जो है वो बंद कर दी गई है। मजीद ट्रैफिक जो है वो मुतबादिल रास्तों पर जो है वो रवाना की जा रही है। इसके साथ साथ ये सेफ्टी प्रिकॉशंस दी जा रही हैं कि जो लोग भी निकल रहे हैं इस वक्त सफ़र के लिए वो अपनी फॉग लाइट्स लाजमी तौर पर चेक कर लें, क्योंकि इस वक्त शहर के अंदर और इसके साथ साथ बाहर की हम बात करें तो उधर धुंध जो है काफ़ी ज़्यादा है। मोटरवे पर 50 हद निगाह है और इसके साथ साथ शहर के अंदर भी 80 मीटर हद निगाह है। दर्जा हरारत की वजह से बात करें तो इस वक्त सर्दी भी जो है वो भी काफ़ी खासी जो है वो बढ़ती जा रही है। इस वक्त 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से टेम्परेचर। बेहतर इब्राहिम खान, ये कहिएगा रेन प्रोडिक्शन भी थी महकमा मौसमियात के मुताबिक और कल बारिश भी हुई मुख्तलिफ एरियाज में, अब क्या कहना है महकमा मौसमियात का? बिल्कुल, बारिशों के हवाले से बात करें तो कल जो है मुल्तान में बारिश है, इसके साथ साथ इसके गिरदोनवा में भी, और मज़ीद बारिशों के भी जो है वो इम्कानात जो हैं वो बताए जा रहे हैं कल के हवाले से। और धुंध के हवाले से बात करें तो धुंध की भी यही सिचुएशन बताई जा रही है कि मज़ीद 2 से 3 दिन धुंध जो है वो इसी तरह से भरपूर शिद्दत के साथ पड़ेगी। और इसके साथ साथ बारिशों के हवाले से बात करें तो बारिशों का सिलसिला जो है उसके बारे में कहा जाता है कि अभी आगाज़ हुआ है, मज़ीद इस हफ्ते जो है वो मज़ीद बारिश होने के भी इम्कानात हैं। जी बेहतर इब्राहिम खान, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे। फोग लाइट्स इस्तेमाल करने का कहा गया है और विदिन अपकमिंग 2 से 3 दिन जो है वो ऐसा ही मौसम रहने वाला है। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं, फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। धुंध जो है वो अंधाधुंध है, 80 मीटर जो हद निगाह है वो रिकॉर्ड की गई है। ऐसे में जो एयरपोर्ट पर हद निगाह रिकॉर्ड की गई है वो 50 मीटर रिकॉर्ड की गई है, जिससे फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने का खदशा भी पैदा हो गया है। न्यू ईयर नाइट पर शराब फरोशों के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया गया है। मुल्तान पुलिस को सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। SSP ऑपरेशंस ने SHO से 30 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली है। मुल्तान पुलिस न्यू ईयर नाइट पर शराब फरोशी की रोकथाम के लिए मुतहरिक हो गई है। SSP ऑपरेशंस ने SHOs को मुरासला जारी कर दिया है। मुरासले में कहा गया है कि शराब फरोशों के खुफिया ठिकानों पर छापे मारे जाएं, रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोशों पर खुसूसी नजर रखी जाए। इसके अलावा स्पेशल ब्रांच के भी खुफिया निगरानी के अहकाम जारी हुए हैं। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन से शराब फरोशों की मालूमात हासिल की जाएं। ताहम SSP ऑपरेशंस ने 30 दिसंबर को कार्रवाइयों की रिपोर्ट तलब कर ली है। खाद माफिया सरगर्म, मुख्तलिफ शहरों में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। काश्तकार पैसे हाथों में लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। लिया के किसानों ने चौबारा रोड बंद कर एहतजाज किया है। कहते हैं हुकूमत माफिया के सामने बेबस हो गई है। लिया में यूरिया खाद का बहरान बरकरार, किसान सख्त सर्दी में रुल गए। काश्तकारों ने लाइनों में लगने के बावजूद खाद न मिलने पर चौबारा रोड बंद कर दिया। कहते हैं खाद को स्टॉक किया जा रहा है। खाद नहीं मिलती पई जिंदे बावजूद 3 पर्चियां थईन 200 गट्टू आया गला मंडी दे विच बाकी रहा के 2500 रुपए आम मिलती पई है, लेकिन जिम्मेदार को कोई गवर्नमेंट की सहूलत नहीं मिलती पई। अगर 2400 इना को देऊं तो खाद रहने नहीं तो मैं ब्लैक ही ते सारे विच दे बैठन अच्छा था 5 बजे दे आकड़े साको हाले ते खाद नहीं मिली। 200 बोरी लाइन 200 बोरी दे विच 3 बोरी चले ने बाकी ना अपने को रख दी है। खुशाब इंतजामिया भी खाद माफिया के सामने बेबस हो गई। काश्तकार खाद के लिए दरबदर की ठोकरें खाने लगे। कहते हैं फसलें तबाह हो रही हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रही। हुकूमत किसानों का इस्तेहसाल बंद करे। कोई नहीं मिल रही, बड़ी परेशानी है। 10 दिन हो गए सर, आते चक्कर लगाकर चले जाते हैं। आप सुबह आकर देखें जहाँ लेने लगी होती हैं, कोई खाद नहीं मिल रही। खाद नहीं मिल रही। जो भी दुकानदारों के पास जाते हैं, ताजरों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई जी अभी हुकूमत दे नहीं रही है, गवर्नमेंट की तरफ से आ नहीं रही है। फोर्ट अब्बास के किसानों की भी मुश्किलात कम न हो सकी। खाद का हसूल ख्वाब बन गया। किसानों का कहना था कि नाकिस हुकूमती पॉलिसियों ने कहीं का नहीं छोड़ा। अब तो गवारा खाद भी नायाब हो चुकी है। काश्तकारों का कहना था कि बड़ी मुश्किल से यूरिया खाद का थैला 2300 में मिला है। खाद ना मिलने से फसल तबाह हो जाएगी। यूरिया खाद जी है 1700 का रेट है, 2200-2300 लभदी भी नहीं है। 2200-2300 भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਰਾ ਖਾਦ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਕਣਕ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। नरमे तो जो कुछ होया हुण साडी कणक दी फसल भी जाती पई है। सनामा में भी यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। डीलरों की दुकानों पर रश। काश्तकार शदीद सर्दी में खाद के लिए लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। कहते हैं सिर्फ मनपसंद अफराद को खाद दी जा रही है। बस वो अपने रीतियां जेड़ा खास खास बंदन
चंद बोरियां चले ने बाकी बाद कितने बजे दे आए हो असा सवेर दे 8 बजे तो आपको मिली है खाद ਸਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਮਿਲਦੀ ਏ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲਾ ਡੂਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਿੰਦੇ ਨੇ काश्त के वक्त डीएपी नायाब थी, अब पहले पानी का वक्त आया तो यूरिया खाद का बहरान आ गया। फी एकड़ पैदावार में कमी की सूरत में आइंदा साल गंदम बहरान का खदशा बढ़ गया। बहावलपुर चिड़ियाघर इंतजामिया की नाअहली हालत खराब होने पर टॉयलेट्स को ताले लगा दिए गए हैं। सैर के लिए आने वाले शहरी शदीद परेशान हैं। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। महमूद ज़हीर की ये रिपोर्ट देखिए। नवाबों के शहर बहावलपुर के बेमिसाल चिड़ियाघर में बद इंतजामी सामने आ गई। टॉयलेट्स की हालत खराब होने पर शहरी शिकवा कना। बच्चों को और मुझे टॉयलेट की ज़रूरत पड़ी, जिसकी मैं उनका हालत देखकर मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकता कि ये इतना अच्छा चिड़ियाघर है और ये टॉयलेट इतना ख़राब है, इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। मुल्तान से आने वाले सियाहों का कहना था कि टॉयलेट्स को ताले डाल दिए गए हैं। चिड़ियाघर की सैर को आने वालों को परेशानी का सामना है। टॉयलेट्स को ताले लगाना इंतजामिया की नाअहली का सबूत है। इतना बड़ा चिड़ियाघर है, पूरी दुनिया देखने आती है और टॉयलेट इतने गंदे होंगे तो वो क्या कहेंगे। सफाई तो होनी चाहिए, अब जहाँ भी जाए फिर जाना तो वॉशरूम पड़ता ही है। अब इधर अगर लॉक है तो फिर सब कहाँ जाएंगे, फौरन घर में तो जाया तो नहीं जा सकता। चिड़ियाघर में हफ्ता और इतवार के रोज 50,000 से ज्यादा अफराद सैर के लिए आते हैं। शहरियों ने मामला का इंतजामिया और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। सूबाई वज़ीर जंगलात सरदार मोहम्मद सप्तैन खान की सरबराही में लकड़ी चोरी बारे अहम इजलास हुआ है। DFO मलिक साकिब अवान और दीगर अफसरों ने इजलास में शिरकत की। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। सूबाई वज़ीर जंगलात सरदार मोहम्मद सप्तैन खान लकड़ी की चोरी रोकने के लिए मुतहरिक। सूबाई वज़ीर ने मियांवाली में इस हवाले से मुनक्कदा इजलास की सदारत की। इजलास में लकड़ी चोरी की वारदातों में मुलविस अफराद के खिलाफ की गई कार्रवाइयों का तफसीली जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर जंगलात सप्तैन खान का इस मौका पर कहना था कि लकड़ी चोरी के खात्मे के लिए लाहे अमल तैयार किया गया है। जंगलात से लकड़ी चोरी को हर सूरत रोका जाएगा। हमारी गवर्नमेंट जो है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है चाहे फेडरल गवर्नमेंट है, वो इस वक्त हमारा जीरो टॉलरेंस चल रही है लकड़ी चोरी पे। अब बात यह है कि चोर तो चोरी से बाज नहीं आता, लेकिन हमने एफर्ट्स करनी है कि हम उसको चोरी के मौके ना दें, या जो चोर पकड़ा जाए उसके ऊपर सख्त से सख्त FIRs की जाएं। सरदार मोहम्मद सप्तैन खान ने इजलास के शोरका को बताया कि कुंदिया मोड़ से मुल्हिका महकमा जंगलात की 50 एकड़ अराजी पर 17 करोड़ रुपए की लागत से पार्क बनाया जा रहा है, जिसका काम 2 साल में मुकम्मल होगा। 50 एकड़ पे है और वो मियांवाली की एक बहुत खूबसूरती में इंशाल्लाह इजाफा करेगा। कुंदिया क्योंकि सेंट्रल प्लेस है और वहाँ हमने फैमिलीज का भी किया है, लोग फैमिलीज के साथ जाएंगे, वहाँ आपको बेहतरीन खाना मिलेगा, वहाँ हट्स होंगी, वहाँ सोलर लैंप्स होंगे। सूबाई वज़ीर जंगलात का मजीद कहना था कि जंगल से लकड़ी चोरी रोकने के लिए सख्त तरीन एक्ट लाया जा रहा है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली का डेरा गाजी खान का दौरा, राखी गाद चेक पोस्ट पर खाद के पकड़े गए ट्रकों का मुआयना किया। पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान मोहम्मद इकराम मलिक ने ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी की कागजात ना रखने वाली खाद की गाड़ियां जब्त करने की हिदायत की गई है। बोले खाद की गैर कानूनी तरसील किसी को हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने चेक पोस्टों पर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान के इक़दाम को सराहा है। चेयरमैन MC हाजी अब्दुल करीम साजिद की ज़ेर सदारत मियांवाली म्यूनसिपल कमेटी का अलविदाई इजलास हुआ है। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा MNA अमजद अली खान, डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद और तमाम काउंसिल्स ने शिरकत की। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियांवाली अब्दुल करीम साजिद की ज़ेर सदारत अलविदाई इजलास जना हाल में मुनक्किद हुआ, जिसमें चेयरमैन कैमा कमेटी बराए दिफा MNA अमजद अली खान भी शरीक थे। उनका कहना था कि बल्दियात के जरिए ही शहरों की तरक्की मुमकिन है। हुकूमत आम प्लान मुरतब कर रही है। आज इनके अलविदाई इजलास से मैं समझता हूँ कि तजावीज़ आई हमारे पास, और पहले भी हमने एक गैर रस्मी अनऑफिशियल इजलास किया था 3 साल पहले भी तमाम काउंसलर्स के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह उसके जितने भी पॉइंट्स थे आज 80% वो कंप्लीट हमने टारगेट्स अचीव कर लिए। हाजी अब्दुल करीम साजिद का कहना था कि बल्दियात हुकूमतों में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। शहर को जितने रास्ते दिए जाएंगे तरक्की होगी। बल्दियात
तमाम मसाइल मियाँ वाली शहर के वो बल्दियात के ही ज़रिए हल होते हैं। और आज अमजद खान की आमद पे हमें खुशी हुई है और उनकी वसात से मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि मियाँ वाली शहर को जितने ज़्यादा रास्ते हम देंगे, इंशाल्लाह मेरा उनके लिए ये मशवरा है कि वो सियासत में अमर हो जाएंगे। अलविदाई इजलास में डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद और तमाम कौंसलर ने शिरकत की। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियाँ वाली। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौका पर तकरीब हुई। मेंबर्स वाइस असम्बली हैदर अली गिलानी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वकला ने मुल्की खिदमात पर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शानदार खराज तहसीन पेश किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार के सदर यूसुफ अकबर नकवी के ज़ेरे सदारत बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी की तकरीब हुई। बार ओहदेदारान समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेंबर सूबाई असम्बली हैदर अली गिलानी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। एजाज जाता है तो सैयद अली हैदर गिलानी को जाता है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में हबीबुल्लाह शाकिर साहब मौजूद बैठे हैं, पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी मिसाल नहीं कि भुट्टो साहब की और बीबी की बरसी इंस्टीट्यूशनली बार ने मनाई गई। शुरका की जानिब से शहीद बेनज़ीर भुट्टो को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। इनका कहना था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक बेहतरीन रहनुमा थी। बीबी ने जो नारा लगाया, रोटी कपड़ा और मकान, इसे सच भी किया था। मोहतरमा के इस कौम पे उनके वालिद के इन शोहदा का इतना एहसान है कि आज हम सियासी तौर पर इस मुल्क में जिंदा हैं, वरना यहाँ पर तो सरदारों की हुकूमत थी। तकरीब में सीनियर वकला मियाँ आदिल मुश्ताक, जवार कुरैशी मेंबर पंजाब बार, जाफिर बुखारी PLF पंजाब कोऑर्डिनेटर, नुशेद आरिफ और सीनियर रहनुमा हबीबुल्लाह शाकिर और डिविजनल सदर खालिद हनफी लोधी ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अलिशबा हसीफ, मुल्तान। खाजा फरीद यूनिवर्सिटी में तलबा के प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की गई। तलबा ने मकामी इंडस्ट्री और शहरियों की ज़रूरत को देखते हुए प्रोजेक्ट्स पेश किए। हमें रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। खाजा फरीद यूनिवर्सिटी में तलबा के फाइनल प्रोजेक्ट्स की नुमाइश हुई। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तलबा ने फाइनल प्रोजेक्ट्स पेश किए। किसी ने बेहतरीन अकेडमी और तालीमी इदारे की तलाश के लिए ऐप मुतारफ कराई, किसी ने ऑनलाइन सेल मॉनिटर करने और अपडेट रखने का प्रोजेक्ट पेश किया। पॉइंट ऑफ सेल है जो आगे वो मतलब लोकली यूज हो रहा है, हमने उसको मतलब ये फैसिलिटी दी है कि उसको ऑनलाइन भी उसका डाटा ऑनलाइन डाटाबेस में सिंक कर सकेंगे। कहीं से भी बैठ के आप उसका डाटा एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये बेसिकली एक ई कॉमर्स स्टोर है जिसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और वो कॉस्टली हैं। उसके ऊपर टिकट्स जनरेट हो रही हैं लो कॉस्ट पे। फॉर एग्जांपल एक $100 का प्रोडक्ट है, वो हमने $1 के ऊपर उसकी टिकट जनरेट कर दी है। तलबा ने ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स की सेल और मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स भी पेश किए। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसम सदीक रोही, रहीम यार खान। दूसरी जानिब इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। गैर मुल्की मंदूबीन ने शिरकत की। वाइस चांसलर डॉक्टर अतहर महबूब का कहना था कि सोशल साइंसेज की मुआशरे में बहुत अहमियत है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। वाइस चांसलर ज़करिया यूनिवर्सिटी मंसूर अकबर कुंडी और वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर अतहर महबूब समेत गैर मुल्की मंदूबीन शरीक हुए। इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो मेरे नज़दीक ये पड़ता है कि सॉफ्ट इमेज ऑफ द पाकिस्तान ये डिसैमिनेट होगा अबाउट द वर्ल्ड। इस खिता के लिए जो कॉन्फ्रेंस है इसके जो है दूरस्थ नताइज बरामद होंगे और इसके साथ देखेंगे इंशाल्लाह। और इसमें मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स हैं, नेशनल स्कॉलर्स और इंटरनेशनल स्कॉलर्स, वो अपने जो है रिसर्च आर्टिकल्स और पेश करेंगे, अपनी रिसर्च पेश करेंगे। शुरका का कहना था कि कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ मुआशरे और निसाबी सरगर्मियों के लिए मुफीद साबित होंगी। सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ के हवाले से ये बहुत लैंडमार्क कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि इसमें सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ के ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर बात हुई है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से सोशल साइंटिस्ट पैदा कर सकते हैं और बाहर की दुनिया से जो सोशल इश्यूज़ हैं उनको हल करने के हवाले से कैसे हम IUB के कनेक्शन कर सकते हैं। वाइस चांसलर ज़करिया यूनिवर्सिटी मंसूर अकबर कुंडी ने कॉन्फ्रेंस के इनकाद को खुशाइंद करार दिया। उन्होंने कहा कि दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए सोशल साइंसेज की अपनी अहमियत है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान में चुंगी नंबर 9 के करीब महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाई गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान में महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनआकाद
चुंगी नंबर 9 के करीब हजूरी बाग रोड पर सजी महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आशिकाने रसूल ने कसीर तादाद में शिरकत की। महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कारी सईद नक्शबंदी और नात ख्वाह अजहर फरीदी समेत दीगर ने शिरकत की और बारगाह रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए। महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मियां जावेद कुरैशी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। डॉक्टर इमरान यूसुफ सैफी ने महफिल के शुरका से खसूसी खिताब किया। खसूसी खिताब करते हुए सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। डॉक्टर इमरान यूसुफ सैफी का कहना था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पर अमल करके ही बेहतरीन जिंदगी गुजारी जा सकती है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े की पीठ पर बैठकर सारी दुनिया में मेरे आका का परचम लेकर चले गए और मुअर्रिखीन लिखते हैं कि आपके जिस्म पर कोई ऐसी जगह न थी जहां पर तलवार के जख्म का निशान न हो। हक ऐसे अदा होता है इस्लाम का। महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदनान याकूब, सैयद ज़ुहैब बुखारी, उस्मान भट्टी, शेख फयाज, राणा मुदस्सिर, शफकत रहमान, उमर राजपूत, अरसलान गोल्ड भी शरीक हुए। महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिर में मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। रोही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।